yes. This is my title slide. Is title slide visible, Harish? What about voice? Okay, thank you. Now you can switch off your mic. I am going to start the lecture number 4, classical mechanics, and today's date is 17th January 2022. Okay, so we have finished 3 lectures related to the unit number 3, and this will be our 4th lecture. Okay, in this lecture we will see what is cyclic coordinates. What is cyclic coordinates we are going to see. Okay, so I will start with Lagrangian. Okay, you know that Lagrangian is depends on qk, qk dot and time. Lagrangian is the function of qk, qk dot and time. This I already explained in one lecture, okay, previous lecture, that Lagrangian is the function of qk, qk dot and t. If you see the equation, Lagrange's equation, you know that d by dt del L by del qk dot minus del L by del qk is equal to 0. मीन्स दैट qk डॉट की टर्म भी वहां रहती है, qk की भी टर्म रहती है और टाइम की भी टर्म रहती है. सो Lagrangian is the function of, this is the Lagrangian function, it is the function of qk, qk dot and time t. And what is the value of k? You know that k is from 1 to n. k की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 1 2 3 4 से लेके n तक. ओके, इफ आई वांट टू एक्सपांड दिस इक्वेशन, if I want to expand this equation, it can be expanded in this form. qk, k की जगह 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, k रख सकता हूं, n रख सकता हूं. सो qk को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं? ओके, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ qk? q1, q2 अप टू qk अप टू qn. ओके, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ qk डॉट? q1 डॉट, q2 डॉट अप टू qk अप टू qn डॉट, एंड t जैसा है वैसा ही रहेगा. So in the expanded form we can write this equation in the expanded form. L is equal to L is the function of q1, q2 up to qk up to qn. और qk को qk डॉट को एक्सपांड कैसे करेंगे? q1 डॉट, q2 डॉट अप टू qk डॉट अप टू qn डॉट. ओके, और t जैसा है वैसा. ओके, सो k की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? द वैल्यू ऑफ k इज वैरीज फ्रॉम 1 टू n. So this is the expanded form of this equation. Okay, qk is generalized coordinate, you know, positional coordinate. qk dot is generalized velocity and t is time. ये तुमको पता है, ये मैं बहुत सारे लेक्चर्स से बताते आ रहा हूँ. qk is generalized coordinate, qk dot is generalized velocity, t is time. Okay, अब what is cyclic coordinate? That is the question. Okay, we have started the equation from these and we have expanded this equation. So L depends on so many coordinates, q1, q2, qk, qn, q1 dot, q2 dot, qk dot, qn dot, t. So L depends on these coordinates. L depends on these generalized coordinates. q मतलब generalized coordinates. तो इतने सारे generalized coordinates पे depend होता है L. Okay, if suppose L does not depend on qk. Okay, I am saying that, I am considering that, I am supposing that L does not depend on qk, means qk is not appeared in the equation of L. Okay, qk does not appear as the function of L, or L does not depend on qk. Suppose, I am supposing that, I am considering that L does not depend on qk, or qk is not appearing in the equation of L. If L does not depend on qk and qk is not appearing in the equation of L, then qk is called cyclic coordinate. अगर qk L के इक्वेशन में appear नहीं हो रहा है, okay, L does not contain qk, it means L does not depend on qk, then qk is called cyclic coordinate. कोई भी कंसिडर किया, वो qk भी हो सकता है, qn भी. मैं कंसिडर कर रहा हूं qk, मैं कंसिडर क्या कर रहा हूं कि qk जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है L के इक्वेशन. सपोज, आई एम सपोजिंग दैट, आई एम कंसिडरिंग दैट q does not appear in the equation of L, और L does not depend on qk. ऐसा मैं बोल रहा हूं. क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोल रहा हूं कि qk अपीयर ही नहीं हो रहा है. qk अपीयर नहीं हो रहा है, हम कंसिडर कर रहे हैं.
Now if L does not contain a particular coordinate qk explicitly means very clearly, स्पष्ट रूप से. एक्सप्लिसिटली का मीनिंग क्या होता है? वेरी क्लियरली. इफ सपोज आई एम कंसिडरिंग दैट L डज नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट qk, से qk, मैंने सपोज किया कि qk L कंटेन ही नहीं है, L डज नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट qk, देन qk इज कॉल्ड साइक्लिक. अगर L does not depend on qk and L does not contain a coordinate qk, then I can say that qk is cyclic. और अगर मान लो L does not contain qk और L does not function, okay, L is not the function of qk, तो तुमको पता है अगर कोई चीज फंक्शन नहीं होती है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. इफ सपोज L is not the function of qk, it means L does not contain a particular coordinate qk, then its partial derivative is zero. You know that del L by del qk is equal to zero if L does not contain qk. Okay, if L is not the function of qk, okay, I am considering that, I am supposing that, okay, हम consider कर रहे हैं कि L qk पे डिपेंड नहीं है. ओके, L के इक्वेशन में qk नहीं आ रहा है. आई एम सपोजिंग दैट इफ L डज नॉट कंटेन अ कोऑर्डिनेट qk, okay, L is not the function of qk, then its partial derivative is zero. You know that del L by del qk is equal to zero. If its partial derivative is zero, then qk is said to be a cyclic. qk is called cyclic coordinate in Lagrangian in L, क्योंकि L की बात कर रहे हैं हम यहाँ L की बात कर रहे हैं. ओके, अगर qk इक्वेशन में अपियर नहीं हो रहा है, अगर L is not the function of qk, then its partial derivative is zero. Okay, if its partial derivative is zero, then qk is said to be a cyclic coordinate in Lagrangian. So qk is called cyclic coordinate in Lagrangian. Okay, very simple. Okay, तुमको तो इसमें तुमको दो चीजें याद रखनी है. पहली चीज क्या याद रखनी है कि अगर L किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं होता है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होता है, और अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो गया तो उस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट. यहां एग्जांपल कौन सा लिया मैंने? qk का एग्जांपल दिया. इफ L डज नॉट कंटेन qk, इफ L डज नॉट डिपेंड ऑन द qk, देन इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इज जीरो, del L by del qk is zero, then qk is said to be a cyclic coordinate. Okay, so if L does not contain a coordinate qk explicitly, if L does not contain a particular coordinate qk explicitly, then qk is said to be cyclic coordinate. Very simple. So qk अगर नहीं है, अपीयर नहीं हो रहा इक्वेशन में, तो qk को हटा देंगे, क्योंकि qk अगर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, ये देखो L is the function of q1 q2 up to qk qn, q1 dot q2 dot up to qk dot, qk dot and q1 dot एंड अब t. इफ सपोज इस इक्वेशन में से qk को मैंने हटा दिया, क्योंकि qk साइक्लिक है तो qk को हटा सकता हूं. ओके, आई एम कंसिडरिंग दैट qk इज साइक्लिक, सो qk शुड नॉट बी अपीयर इन दिस इक्वेशन. qk should not be appeared in this equation if qk is cyclic. If qk is cyclic, then I can remove qk from this equation. Okay, if I remove from this equation, so equation 1 becomes L is equal to L q1 q2 up to qn, q1 dot q2 dot qk dot रहेगा बट qk हट जाएगा. qk क्यों हट गया? क्योंकि qk साइक्लिक है, और अगर qk साइक्लिक है तो qk शुड नॉट बी अपीयर्ड इन दैट इक्वेशन, सो आई कैन रिमूव दैट qk. अगर qk रिमूव किया तो इक्वेशन 1 बिकम्स लाइक दिस. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. वेरी सिंपल. तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है? इफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट is not the function of L, is not the function of L means L does not contain a particular coordinate, then that coordinate is called cyclic, and its partial derivative the partial derivative of L with respect to that coordinate is zero. The partial derivative of L with respect to cyclic coordinate is zero. तो qk को मैंने cyclic coordinate consider किया यहाँ पर. ओके, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इसका मतलब L का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू qk जीरो हो जाएगा, क्योंकि L डज नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट qk, देन qk इज कॉल्ड साइक्लिक. ओके, अगर qk साइक्लिक है तो इस इक्वेशन में से qk हट जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम लाइक दिस. एक एग्जांपल भी दूंगा. ओके, आई विल
give you one example. Suppose I am considering a free particle. Free particle मतलब a particle which can move in any direction, that is called free particle. X डायरेक्शन में मूव हो सकता है, Y डायरेक्शन में मूव हो सकता है, Z डायरेक्शन में मूव हो सकता है. तो I am considering a free particle, okay, and free particle is moving in all direction. Okay, so what is the Lagrangian for free particle? You know that L is equal to T minus V. This is the Lagrangian function for free particle. L is equal to T minus V. Okay, so फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी? जीरो होगी, बिकॉज फ्री पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल की जीरो होगी. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी फ्री पार्टिकल. कोई भी पार्टिकल मूव हो रहा है और वो सिंगल पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर, तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. ओके, पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्री पार्टिकल इज जीरो. ओके, बिकॉज दैट फ्री पार्टिकल इज इन मोशन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर. और वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. तो वी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? qk डॉट. ओके, फॉर सिंगल पार्टिकल, ये एक फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो k इक्वल टू 1 होगा, तो उसको हम q डॉट भी लिख सकते हैं. सो वेलोसिटी को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में किस फॉर्म में लिखते हैं? qk डॉट के फॉर्म में. ओके, यहां एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो q डॉट बोल सकते हैं. सो लैग्रेंजियन फॉर फ्री पार्टिकल L इज इक्वल टू T माइनस V. पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी फ्री पार्टिकल के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m q डॉट स्क्वायर. q डॉट मतलब वेलोसिटी, और एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां k नहीं लिख रहा हूं. k मतलब जनरल फॉर्म होता है, और यहां सिर्फ सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ q डॉट लिख रहा हूं, और q डॉट मतलब होता है वेलोसिटी. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फ्री पार्टिकल की? हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी. पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m q डॉट स्क्वायर. अब देखो, ये है लैग्रेंजियन. दिस इज द लैग्रेंजियन फॉर द फ्री पार्टिकल, एंड दिस लैग्रेंजियन okay, this Lagrangian is equal to the kinetic energy, because the potential energy for the free particle is zero, because free particle is in motion, so it is having kinetic energy. So what is kinetic energy for free particle? Half mv square, but in generalized format v can be written as qk dot, but यहाँ एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए q डॉट लिखा मैंने. Okay, so L is equal to half m q dot square. Now just see that L means Lagrangian, that is equivalent to half m q dot square. Lagrangian is equal to half m q dot square. Okay, it means Lagrangian L depends on q dot. यहां पे q dot है. q है क्या इस इक्वेशन में? नहीं. Okay, you cannot see q here, but you can see q dot, means q is not appearing here in this equation. q दिख रहा है क्या तुमको? नहीं. q dot दिख रहा है, मतलब q दिख रहा है क्या इस इक्वेशन में? नहीं. ओके, q डॉट दिख रहा है. q अपियर हो रहा है क्या इस इक्वेशन में? नहीं. q डॉट अपियर हो रहा है. इसका मतलब इस इक्वेशन में q अपियर नहीं हो रहा है, तो इस इक्वेशन के लिए q को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेट. सिंस ओके, पोटेंशियल एनर्जी जीरो फॉर फ्री पार्टिकल, आई नो. इन अबव इक्वेशन q इज नॉट प्रेजेंट, बट इट्स टाइम डेरिवेटिव q डॉट इज प्रेजेंट. ओके, in the above equation, this is the equation of Lagrangian for free particle. So Lagrangian of the free particle is equal to half m q dot square. Okay, half m q dot square. In this equation you can see that q is not present, q is not here, but q dot is here, but its time derivative q dot is present. So thus q can be considered as a cyclic coordinate for this equation for the free particle. So Lagrangian of the free particle does not contain q, hence q is called cyclic coordinate for this Lagrangian for free particle. Very simple. So this is the example. और एग्जाम्पल क्या है? फ्री पार्टिकल का जब हमने लैग्रेंजियन निकाला तो लैग्रेंजियन में q प्रेजेंट नहीं था, q डॉट ही प्रेजेंट था, और q प्रेजेंट नहीं था मतलब q कैन बी कंसिडर्ड एज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर दिस इक्वेशन. वेरी सिंपल. तो अब तुमको ये पता चला कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है. ओके, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट जो एल में अपीयर नहीं होंगे. हम लैग्रेंजियन की बात कर रहे हैं, हम हैमिल्टोनियन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैग्रेंजियन की बात कर रहे हैं.
अगर लैग्रेंजियन के इक्वेशन में कोई कोऑर्डिनेट अपीयर नहीं होता है, अगर लैग्रेंजियन इज नॉट द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, देन इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, then the partial derivative of Lagrangian with respect to that coordinate is zero, then that coordinate is called cyclic coordinate. इसका मतलब if del L by del QK is zero, so QK is cyclic coordinate. ओके, और वो QK उस Lagrangian इक्वेशन में अपीयर नहीं होगा. सो ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट. तो ओके, साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन तो हो गई अभी, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के. अगर मैंने बोल दिया QK इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव, लैग्रेंजियन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू QK इज जीरो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन लैग्रेंजियन. हम L में बात कर रहे हैं, हम अभी H में बात नहीं कर रहे हैं, हम लैग्रेंजियन की बात कर रहे हैं. So if I say that QK is cyclic in L, इसका मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव, L का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू QK क्या होगा, जीरो होगा. If I say that QK is cyclic in L, then del L by del QK is equal to zero. Very simple. तो अभी मैंने बोला कि QK साइक्लिक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी करने के लिए हम पहले लैग्रेंजियस इक्वेशन देखते हैं. अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है. वी हैव सीन दैट व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, एंड वी हैव सीन वन एग्जांपल फॉर अ फ्री पार्टिकल. और फ्री पार्टिकल के इक्वेशन में Q अपीयर नहीं होता है, Q डॉट अपीयर होता है. तो Q क्या है, साइक्लिक है फॉर दैट पर्टिकुलर फ्री पार्टिकल. ओके, नाउ वी विल सी द इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट. ओके, suppose this is the Lagrange's equation. From Lagrange's equation of motion, you know that what is, this is the Lagrange's equation of motion. d by dt in the bracket del L by del QK dot minus del L by del QK is equal to zero. This is the Lagrange's equation. Okay, this is the Lagrange's equation. T is time, QK dot is generalized velocity, and QK is generalized coordinate. Okay, but we are considering that QK is cyclic. We are considering that QK is cyclic in L. Okay, so we are considering that QK is cyclic. हम consider कर रहे हैं कि QK क्या है, cyclic है. If QK is cyclic, then its partial derivative with respect to QK, the partial derivative of L with respect to QK is zero. Okay, पहली स्लाइड में बताया, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा. सो इफ QK is cyclic, then del L by del QK is zero. Del L by del QK is zero. So if del L by del QK is zero, तो ये जीरो हो जाएगी टर्म लैग्रेंजियस इक्वेशन में. So the above equation becomes, the above Lagrange's equation becomes d by dt del L by del QK dot is equal to zero. So suppose this is equation number 3. Very simple. So now we are going to see the consequences or effect of cyclic coordinate. For that I am considering that this is the Lagrange's equation of motion. That is Lagrangian equation of motion or Lagrange's equation of motion. d by dt del L by del QK dot minus del L by del QK is equal to zero. But if QK is cyclic, हमने क्या कंसिडर किया, QK क्या है, साइक्लिक है. If QK is cyclic, then its partial derivative with respect to, then the partial derivative of Lagrangian with respect to QK is zero. Del L by del QK dot QK is zero. If del L by del QK is zero, put in the above equation del L by del QK की जगह zero लिख दिया. तो अब बचा क्या मेरे पास, d by dt del L by del QK dot is equal to zero. This is the equation number 1. So ये इक्वेशन हमारे पास बचा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो गई. ये टर्म जीरो क्यों हो गई, क्योंकि QK साइक्लिक है. QK साइक्लिक है मतलब L does not depend on the QK. If L does not depend on QK, then del L by del QK is zero. Del L by del QK is zero. तो ये जीरो हो गया. तो अभी बचा क्या मेरे पास, d by dt del L by del QK dot is equal to zero. So this is equation number 3. Now see this equation. See this equation. In this equation the term is del L by del QK dot. Del L by del QK dot means partial differentiation of L with respect to QK dot. So अभी ये टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है, del L by del QK dot. I have to find out the term del L by del QK dot. So del L by del QK dot कैसे फाइंड आउट करेंगे, L पता होना चाहिए उसके लिए. अगर L पता है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो QK डॉट के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट del L by del QK dot. ओके,
So now to find out the del L by del QK dot, we know that L is what? T minus V. L क्या है? T minus V. Okay. So अभी L को मैं डिफरेंशिएट करूंगा QK डॉट के रिस्पेक्ट में, then I have to find, then I can find out the del L by del QK dot. So in this equation number 3, first of all I will find out del L by del QK dot. After getting the value of del L by del QK dot, then I will put in the equation number 3. Okay, then I will proceed. Okay, so first of all, after this step, my target is to find out del L by del QK dot. Okay, so अभी del L by del QK dot मुझे find out करना है, तो मुझे पता है L क्या होता है. Okay, now I will find out del L by del QK dot, and we know that L is what? T minus V. L is what? T minus V. The difference between kinetic and potential energy, this is called Lagrangian function. L is equal to T minus V. Okay, you know that T is kinetic energy, and kinetic energy is depend upon QK and QK dot, and this is potential energy, and potential depend on only positional coordinate QK. ये तुमको पता है. Kinetic energy is depends on QK and QK dot, but potential energy is depends only on QK. ये मैंने बताया था जब हम डिराइव कर रहे थे Lagrange's equation for Hamilton's principle. Then I have already taught you, or I have already told you that kinetic energy is the function of QK and QK dot. Okay, because kinetic energy में क्या होता है? Velocity होता है, तो QK dot क्या? Generalized velocity. तो kinetic energy depends on QK and QK dot, but potential energy is only depend on QK. Okay. So now I have to find out what? I have to find out del L by del QK dot. अब काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर. बट यहां पे हम वेलोसिटी नहीं लिखते हैं. यहां पे हम वेलोसिटी क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज कोऑर्डिनेट. सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? QK डॉट लिखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? हाफ m QK डॉट स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m QK डॉट स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी जैसी है वैसी लिखूंगा मैं, V QK, बिकॉज QK डॉट मीन्स वेलोसिटी होती है. ओके, इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट वेलोसिटी कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ QK डॉट. सो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या लिखा? हाफ m QK डॉट स्क्वायर. QK डॉट मतलब क्या होता है? वेलोसिटी. सो जनरली हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर. बट हियर वेलोसिटी मीन्स QK डॉट, सो हियर इज QK डॉट स्क्वायर. सो ये इक्वेशन मुझे मिल गया. सो L इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m QK dot square minus this is potential energy which is depends on QK. Potential energy is depends on QK. So I will get this equation. L is equal to, why I am doing so? Why I am doing this? Because I have to find out del L by del QK dot. इक्वेशन नंबर 3 मैं फिर से दिखाऊंगा. ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? ये देखो इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में ये वाला है इक्वेशन नंबर 3, d by dt del L by del QK dot is equal to 0. So I have to find out del L by del QK dot. That's why I am doing so. Okay, that's why I am doing this. L लिया t minus v, t minus t is depends on QK and QK dot, and v is depends on QK only. And the kinetic energy for simple kinetic energy in the generalized format is half m v square. V square means QK dot square. Half m QK dot square minus v. This is L. तो ये L मिल गया. But I have to find out del L by del QK dot to differentiate L with respect to QK dot. So partially differentiate this equation with respect to QK dot. So taking partial derivative with respect to QK dot. तो इस इक्वेशन का partial derivative ले लो with respect to QK dot. अब देखो, so L का derivative with respect to QK dot, partial derivative del L by del QK dot minus half m half constant, m constant, QK डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू QK डॉट ट्वाइस QK डॉट. तुमको पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस y. उसी तरीके से हाफ m इज कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ QK डॉट स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू QK इज ट्वाइस QK डॉट माइनस. अब पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ QK, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ QK डॉट. तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू QK डॉट 0 होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ QK. पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? QK का. QK डॉट का फंक्शन है क्या पोटेंशियल एनर्जी? नहीं.
So the derivative, the partial derivative of potential energy with respect to qk dot is 0. तो ये 0 हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू qk डॉट 0 हो जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ इसी टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे. सो क्या होगा, डेल एल बाय डेल qk डॉट इज इक्वल टू हाफ m इज कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ qk डॉट स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू qk डॉट इज ट्वाइस qk डॉट माइनस 0 बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to qk dot is 0 because the potential energy depends on qk only. Okay, so we will get del L by del qk dot is equal to half m constant into qk dot square का डेरिवेटिव with respect to qk dot twice qk dot minus potential energy का डेरिवेटिव with respect to qk dot 0 होता है तो 0 आएगा. अब देखो ये 2 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, 2 कैंसल इज देयर. ओके, सो 2 कैंसल हो जाएगा. अब क्या बचा अभी मेरे पास, डेल एल बाय डेल qk डॉट इज इक्वल टू m इंटू qk डॉट. m क्या है, मास. qk डॉट क्या है, वेलोसिटी. qk डॉट इज जनरलाइज वेलोसिटी. सो मास इंटू जनरलाइज वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम. मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. सो मास इंटू जनरलाइज वेलोसिटी इज जनरलाइज मोमेंटम. Very simple. The product of mass and velocity, momentum. So here product of mass into generalized velocity, generalized momentum. So mass into generalized velocity is generalized momentum. Mass into generalized velocity, mass into generalized velocity, generalized momentum. It can be represented by the symbol pk. Pk is generalized momentum. Mass into velocity, momentum. Mass into generalized velocity is generalized momentum. So I got the value of del L by del qk dot is nothing but pk. This is the equation number 4. तो इस तरीके से मैंने del L by del qk dot की वैल्यू निकाली by using the Lagrangian function L is equal to t minus v. Then I got the value of del L by del qk dot is nothing but the pk. pk means generalized momentum. ओके, तो पीके की, सो डेल एल बाय डेल qk डॉट की वैल्यू मिल गई मुझे. सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ डेल एल बाय डेल qk डॉट दैट इज इक्विवेलेंट टू pk. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. वेरी सिंपल. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल एल बाय डेल qk डॉट? आई गॉट द वैल्यू फॉर डेल एल बाय डेल qk डॉट इज नथिंग बट द pk. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. So put the value of del L by del qk dot from equation number 4 to equation number 3. Equation number 3 क्या है, देखो. This is the equation number 3. Just look at this is equation number 3 and I got the value of del L by del qk dot. So what is value of del L by del qk dot? pk. तो pk रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो. Okay, very simple. So I am putting the value of del L by del qk dot in equation. So putting the value of del L by del qk dot in equation number 3. So this is equation number 3. This is the from 3. This is the equation number 3. So I am putting the value of del L by del qk dot. So what is the value of del L by del qk dot? Just I have derived. The value of del L by del qk dot is nothing but pk. तो डाल दो, वैल्यू पुट करो. So in place of del L by del qk dot I am writing pk. So ये del L by del qk dot की जगह pk लिखा because we have derived the value of del L by del qk dot is pk. pk means generalized momentum. Now see this equation. The time derivative of generalized momentum is 0, means d dt of pk is 0. It means dpk by dt is equal to 0. अब तुमको पता है किसी भी चीज का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो वो चीज क्या होती है, कांस्टेंट. You know that. You already know that if the derivative of particular quantity is 0, it means that quantity is constant. If I say that derivative of x with respect to t is 0, तो x is constant. If I say that the derivative of velocity with respect to time is 0, तो velocity is constant. dv by dt is 0 means velocity is constant. dx by dt is 0 means x is constant. उसी तरीके से derivative of pk is 0, it means pk is constant. If suppose derivative, अभी हमको जो भी मिला derivative of that pk is 0, derivative of pk is 0, time derivative of pk is 0 means pk is constant. pk को क्या, pk क्या रहेगा, constant. और pk constant मतलब pk क्या हो रहा है, conserved हो रहा है. pk क्या है,
generalized momentum. If the derivative of generalized momentum with respect to time is 0, it means generalized momentum is constant. If generalized momentum is constant, means generalized momentum is conserved. Very important result we got. How we got this result? We have started from cyclic coordinate. If qk is cyclic coordinate, then its momentum is conserved. This is the important result we got. This is the important consequence we got from the cyclic coordinate. हमने स्टार्ट कहां से किया था? qk साइक्लिक है, ये बोला था. अगर qk साइक्लिक है तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट. If I say that qk is cyclic and L, then its conjugate momentum is conserved. This is very important result. If qk is cyclic, then its conjugate momentum means pk is conserved. Okay, तो ये हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला. हमने स्टार्ट किया qk से. अगर qk साइक्लिक है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, उसका कॉन्जुगेट मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी गॉट फ्रॉम साइक्लिक कोऑर्डिनेट. ओके, तो हमने पहली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है. अगर किसी भी लैग्रेंजियन में वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं है, अपियर नहीं हो रहा है, इफ लैग्रेंजियन इज नॉट द फंक्शन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, then its partial derivative with respect, then the partial derivative of Lagrangian with respect to that coordinate is 0, then that coordinate is said to be cyclic. If that coordinate is cyclic, then its momentum conserved. Very simple. अगर वो coordinate cyclic है तो उसका momentum constant होगा. So if qk को consider कर रहे हैं हम cyclic coordinate. If qk is cyclic, then its conjugate momentum is conserved. If qk is cyclic, then pk is constant. If qk is cyclic, then pk is conserved. तो ये चीज याद रखनी है तुमको. अगर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसका कॉन्जुगेट मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है. इफ qk is cyclic, then its conjugate momentum pk is conserved. तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा. तो अभी तक हमने जो रिजल्ट पढ़ा वो लैग्रेंजियन के लिए पढ़ा, एल के लिए पढ़ा. हमने किसके लिए पढ़े रिजल्ट्स? अभी तक जो भी रिजल्ट स्टडी किया वो लैग्रेंजियन के लिए किया, एल के लिए किया. ओके, अब एल की बात छोड़ के एच पर आते हैं हम. ठीक है, अभी तक हमने जो रिजल्ट देखा qk इज साइक्लिक इन एल लैग्रेंजियन की बात किया. ओके, इफ qk इज साइक्लिक इन एल, देन इट्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड, pk इज कांस्टेंट. सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द लैग्रेंजियन एल. लेकिन अगर हम एल को छोड़ के अभी एच की बात करते हैं. एच मतलब हैमिल्टोनियन. देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो स्टार्ट हुआ था न्यूटन से. उसके बाद कुछ फॉर्मूले डेवलप किए लैग्रेंजी ने, तो उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन डायनामिक्स, उसको बोलते हैं लैग्रेंजियस इक्वेशन. फिर लैग्रेंजियंस के आगे बढ़ के हैमिल्टन आया, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हैमिल्टोनियन फंक्शन पढ़ा, फिर एच की बात किए. तो हैमिल्टन ने कुछ फॉर्मूले डेवलप किए, उसको बोलते हैं हैमिल्टन फॉर्मुलेशन. अभी तक हम लैग्रेंजियन पढ़ रहे थे. अब हमने बताया कि qk साइक्लिक है लैग्रेंजियन में. ओके, qk साइक्लिक है लैग्रेंजियन में, तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. अभी हम सिर्फ L की बात कर रहे थे. अभी जो L के लिए ट्रू है वो H के लिए भी ट्रू होना चाहिए, है कि नहीं? अगर qk साइक्लिक है L में तो qk H में भी साइक्लिक होना चाहिए. ओके, तो अगर मान लो हम अभी तक लैग्रेंजियन की बात कर रहे थे, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर qk साइक्लिक इन L, अगर लैग्रेंजियन के फॉर्मूले में qk साइक्लिक है तो H में भी साइक्लिक होना चाहिए. ओके, इफ qk साइक्लिक इन L, देन इट इज ऑल्सो साइक्लिक इन H. तो अगर लैग्रेंजियन में qk साइक्लिक है तो हैमिल्टोनियन में भी qk साइक्लिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो ये भी प्रूफ करेंगे हम, ये भी प्रूफ करेंगे कि इफ qk इज साइक्लिक इन L, सो इट इज ऑल्सो साइक्लिक इन H. ये हम प्रूफ करेंगे. ओके, तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? यू नो दैट qk इज साइक्लिक इन L. अगर qk लैग्रेंजियन में साइक्लिक है तो क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट मोमेंटम कांस्टेंट होता है. यू नो दैट. अभी हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया. इफ qk इज साइक्लिक, देन इट्स मोमेंटम इज कांस्टेंट. It means if momentum is constant, its partial derivative with respect its derivative with respect to time is 0. You know that.
ओके, सो अभी हम प्रूफ करेंगे कि अगर QK साइक्लिक है L में तो ये साइक्लिक H में भी होगा. अगर QK, if QK is cyclic in Lagrangian, so it also cyclic in H. We will prove. Okay, so we know that if QK is cyclic in L, then its conjugate, then its momentum conjugate momentum is conserved. If QK is cyclic in L, then PK is constant. If PK is constant, then its derivative with respect to time is 0. dpk upon dt is equal to 0. Very simple. ओके, तो ये तुमको पता है. तो हम अब प्रूफ करेंगे कि QK साइक्लिक है L में तो ये साइक्लिक होगा H में भी. उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि QK is cyclic in L. If QK is cyclic in L, its momentum is constant, its conjugate momentum PK is constant. If momentum is constant, then its time derivative is 0. कोई भी चीज कांस्टेंट होती है उसका टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? 0. सो dpk by dt is equal to 0. ओके, ये ध्यान में रखना है. dpk by dt is equal to 0. नाउ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन देखा था हमने. फ्रॉम हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन लास्ट लेक्चर के लास्ट स्लाइड में दो इक्वेशन बताया था. उन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन. उसमें से एक इक्वेशन को कोट करूंगा मैं. ये इक्वेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में. आई हैव शोन यू दिस इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन. तो हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन क्या होता है? del H by del QK is equal to minus PK dot. PK dot means that is the derivative of momentum, derivative of generalized momentum, और minus del H by del QK is equal to minus PK dot. This is the Hamiltonian's canonical equation. दो इक्वेशन दिखाया था मैंने, उसमें से एक इक्वेशन ले रहा हूं, और ये इक्वेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है? मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है. ओके, अगर तुमको याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि व्हाट आर हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन. तो उसमें से एक इक्वेशन कोट कर रहा हूं. सो फ्रॉम हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन del H by del QK is equal to minus PK dot. अभी देखो यहां PK dot है. This PK dot मतलब क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव. Dot means what? डेरिवेटिव. So PK dot means dpk by dt, है कि नहीं? डॉट का मीनिंग, जैसे मैंने बोला x dot, तो x dot का मीनिंग क्या होता है? dx by dt. जैसे मैंने बोला y dot का मीनिंग क्या होता है? dy by dt. उसी तरीके से PK dot बोला तो PK dot का मीनिंग क्या होता है? dpk by dt. तो इसको ऐसा लिखूंगा मैं, del H by del QK is equal to minus dpk by dt. But dpk by dt is 0. ये देखो ऊपर वाला इक्वेशन. Because I am considering that QK is cyclic in L, then PK is constant and its derivative is 0. dpk by dt is 0. अब dpk by dt 0 हो तो minus 0 होता है, तो ये 0 हो गया. So if QK is cyclic in L, then PK is constant. If PK is constant, then its time derivative is 0. अब देखो इस इक्वेशन से, this is the Hamiltonian canonical equation. Del H by del QK is equal to minus PK dot, and PK dot I can write as dpk by dt. डॉट को मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव के फॉर्म में, जैसे x डॉट होता है dx by dt. So PK dot is nothing but dpk by dt, but dpk by dt is 0. dpk by dt is 0 from this expression. So if dpk by dt is 0, then I got del H by del QK 0. I got del H by del QK 0. मतलब partial derivative of H with respect to QK is 0. मतलब क्या मिला मुझे? Partial derivative of Hamiltonian function with respect to QK 0. अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू qk 0 है, मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट qk is 0, देन आई कैन से दैट qk इज साइक्लिक, आल्सो साइक्लिक इन h. मतलब qk अगर साइक्लिक है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव मतलब लैग्रेंज, जैसे मैंने बोला था इनिशियली qk इज साइक्लिक इन L, सो द डेरिवेटिव ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू qk is 0. So if QK is cyclic in H, then is partial derivative with respect to QK 0 आ रहा है, del H by del QK 0 आ रहा है. इस means QK is cyclic in H. जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था QK is cyclic in L, मतलब del L by del QK is 0.
it means qk is cyclic in Lagrangian. Here we got del h by del qk 0. If partial derivative of Hamiltonian with respect to qk is 0, it means qk is cyclic in H. Very simple. So we have derived from Hamiltonian's canonical equation, we got the value del h by del qk is 0. If the partial derivative of H with respect to qk is 0, it means that qk is cyclic. मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट का, किसी भी हैमिल्टोनियन का या फिर लैग्रेंजियन का, इफ सपोज लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेट साइक्लिक है. उसी तरीके से हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, इट मींस del h by del qk is 0. इट मींस द डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू qk is 0. देन qk इज ऑल्सो साइक्लिक इन H. तो हमने ये प्रूफ किया, अगर qk साइक्लिक है लैग्रेंजियन के लिए तो qk साइक्लिक होगा हैमिल्टोनियन के लिए भी. समझ में आया? सो अगर qk साइक्लिक है L के लिए तो qk साइक्लिक रहेगा H के लिए भी. ये हमने सिंपल प्रूफ किया. और एक इंपॉर्टेंट नोट तुमको याद रखना है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आर मोस्ट यूजफुल इन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स रादर देन द लैग्रेंजियन मैकेनिक्स. क्यों साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मोस्ट यूजफुल है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में रादर देन द लैग्रेंजियन? क्योंकि लैग्रेंजियन में अगर qk को तुमने हटा भी दिया, लैग्रेंजियन इक्वेशन में अगर qk को तुमने हटा भी दिया तो लेकिन उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट रहता है. qk को तुमने रिमूव भी कर दिया, अगर qk साइक्लिक है और qk को तुमने रिमूव कर दिया लैग्रेंजियन इक्वेशन में से, फिर भी वहां पे qk डॉट रहता है. qk डॉट वाला टर्म रहता है, मतलब qk से रिलेटेड जो टर्म होती है, qk का वेलोसिटी कर दिया तो तुमको क्या बन जाता है, qk डॉट. तो लैग्रेंजियन में qk को रिमूव भी कर दिया फिर भी वहां पे qk डॉट रहता है, लेकिन हैमिल्टोनियन में ऐसा नहीं रहता. इसलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आर मोस्ट यूजफुल इन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स rather than the Lagrangian mechanics. Okay, so we have seen the important result. Okay, so हमने important result क्या क्या देखे? अगर qk cyclic है, if qk is cyclic in L, so qk is also cyclic in H. Means if partial derivative of L with respect to qk is 0, then we can say that partial derivative of H with respect to qk is also 0. If qk is cyclic in L, then qk is also cyclic in H. ये एक result important proof किया. दूसरा रिजल्ट क्या प्रूफ किया हमने? ओके, इसके पहले का रिजल्ट हमने ये प्रूफ किया, इफ qk इज साइक्लिक देन इट्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इफ qk इज साइक्लिक देन इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो ये भी एक रिजल्ट प्रूफ किया. ओके, और उसके पहले हमने देखा व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है. इफ द लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, इफ द इक्वेशन डज नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट. देखो यहाँ पे qk है क्या, इस इक्वेशन में qk नहीं है, मतलब qk क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट. देन वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ फ्री पार्टिकल एंड वी गॉट द इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल. इन दैट इक्वेशन वी डिड नॉट सी q नहीं दिख रहा है. ओके, वी हैव सीन q डॉट बट वी डिड नॉट सी q, देन q इज साइक्लिक फॉर द फ्री पार्टिकल. ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है. ओके, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का सिग्निफिकेंस क्या है और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है. इफ कोई कोऑर्डिनेट अगर लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में या कोई कोऑर्डिनेट अगर लैग्रेंजियन के लिए साइक्लिक है तो वो हैमिल्टोनियन के लिए भी साइक्लिक होगा. ये सारी चीजें देखे हमने. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू today's portion is was very easy portion.